बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल अदनान बशीर वड़ाइश का कहना है कि ड्राईपोर्ट चौक की सफाई सुथराई और नए दरख्त लगाने पर बातचीत और भोपाल वाला में इंतजामिया की जानिब से नाला 1 के पुल की टूटी साइड की तमीर और सड़क की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया, जो यकीनन एक काबिल तहसीन इक़दाम है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइश और पीरा फोर्स के इंचार्ज हुसैन मुनीर से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर ने ख़ुसूसी मुलाकात की। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर में तरक्याती काम शुरू हैं और जब तक हम समड़ियाल में मौजूद हैं इंशाल्लाह ये काम दिन रात चलते रहेंगे। इसके अलावा रंधीर मोड़ से रंधीर बागड़ियाँ और किशनगढ़ जाने वाली सड़क जो टूट फूट का शिकार है, इस पर भी बात हुई। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइश ने कहा है कि इंशाल्लाह हमने मीटिंग में इसका भी बार बार जिक्र किया है, इंशाल्लाह जल्द ये रोड भी तमीर करवाया जाएगा। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज से अपील है कि ऐसे ईमानदार और फर्शनास ऑफिसर शहर की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੜਿਆਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਨਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ। ਭੋਪਾਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਸਮੜਿਆਲ ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੜਿਆਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बड़ा शुक्रिया जी। देखो ਸਮੜਿਆਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੂँਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀਵੈਂਪਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਨੂਮੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮੁਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਰਉਮੀਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਮੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਬਾਇਸ ਬਣਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿਨੇ ਸਮੜਿਆਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧੀਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਰੰਧੀਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਸੜਕ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਬ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਹੱਲ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ इंशा अल्लाह ताला से एक हल कर देंगे। मरी से हमारे ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरीम औरंगजेब ने मरी माल रोड का दौरा किया और मरी डेवलपमेंट प्लान का जायज़ा लिया। मरी में वॉल सिटी लाहौर के तर्ज काम जारी, शहर में पुरानी तर्ज पर बिल्डिंग्स को बहाल किया जा रहा है। मरी डेवलपमेंट प्लान के हवाले से हिल साइट का जायज़ा भी लिया गया। गवर्नर हाउस मीटिंग में अहम फैसले मुतवक्के हैं। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? चोर पकड़ा गया, इकरार भी कर लिया, लेकिन पुलिस थाना गला मंडी ने सास पास करके छोड़ दिया। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफसर काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी सहाफ़ी इफ्तिखार हुसैन, जो कि 134 9L का रिहायशी है, घर चोर रात के अंधेरे में दीवार फैलान कर आता और वारदात डालकर चला जाता। गुज़िश्ता दिनों चोर आया, वारदात के दौरान ताक में बैठे घर वालों और मोहल्लेदारों ने पकड़ लिया और पुलिस को पकड़ा दिया। इसने मुतअद्दिद वारदातों का इकरार भी कर लिया, लेकिन पुलिस ने छोड़ दिया। मुल्ज़िम आदि मुजरिम है और मंशियात का इस्तेमाल भी करता है और मंशियात फरोश भी है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार मुतासा ख़ानदान और मोहल्लेदार
रजाकारों की DPO साहिवाल और RPO से अपील है कि हमारी दादरसी की जाए और मुलजिम को दोबारा पकड़कर करारवा की सजा दी जाए। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की साहिवाल आमद और उन्होंने वफाकी वजीर सईद इमरान अहमद शाह के रिहाइशगाह पर जाकर इनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की और इनके बुलंद दर्जात की दुआ की। इसके बाद गवर्नर पंजाब मोहम्मद ज़की चौधरी सदर पीपल्स पार्टी जिला साहिवाल के रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां पर मोहम्मद ज़की चौधरी सदर पीपल्स पार्टी जिला साहिवाल, मेहर गुलाम फरीद काटिया, एडवोकेट साबिक वफाकी वजीर चौधरी सरमद शफकत, टिकट होल्डर MP हल्का नंबर 199 मेहर कुतुबुद्दीन तारिक, एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसल आमिर सजाद चौहान, एडवोकेट सदर PLF जिला साहिवाल हुमायूं जाहिद, एडवोकेट सेक्रेटरी PLF जिला साहिवाल शेख तारिक सजाद, एडवोकेट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट बार साहिवाल, मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी प्रेस क्लब साहिवाल तैयब हबीब खान, सीनियर जर्नलिस्ट और पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने इनका इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वकला, मीडिया और पार्टी अहदेदारों के वफूद ने मुलाकात की है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मौजूदा हालात के मुताबिक इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हुई है जिससे पाकिस्तान को बहुत इज्जत मिली है। जंग में एक तरह से पूरी दुनिया मुश्किलात का शिकार थी। अमेरिका और ईरान बात करने को तैयार ना थे। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको एक टेबल पर बिठाया। सरगोदा पुलिस और खिदमत खलक पाकिस्तान की इशराक से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। सरगोदा पुलिस और खिदमत खलक पाकिस्तान के बाहमी ताउन से एक खसूसी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद थैलेसीमिया जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला मासूम बच्चों की जिंदगियों को सहारा देना था। कैंप के दौरान भिंबर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए 120 ब्लड बैग्स जमा किए गए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन सरगोदा इमरान अब्बास सदर ने ब्लड कैंप का दौरा किया। इन्होंने खून अतिया करने वाले रज़ाकारों से मुलाकात की और इनके इस जज्बे को रहा। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि सरगोदा पुलिस आपके इस बेमिसाल जज्बे को सलाम पेश करती है। आपके खून का एक एक कतरा मासूम बच्चों की जिंदगियों का चिराग रोशन रखने में मददगार साबित होगा। पुलिस सिर्फ अमन व अमान के क़याम तक महदूद नहीं बल्कि समाजी खिदमत और इंसानियत की बका के हर काम में अवाम की शाना बशाना खड़ी है। सफदराबाद से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ राना रहमत की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राना शबीर की साहबजादी की शादी की पुरवकार और पुरतकल्लुफ़ तकरीब मुकामी निजी मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई। दुल्हन राना हमजा राना तोकीर और राना उमैर की हमशीरा है। शादी की इस खुशी के मौका पर अहले खाना अज़ीज़ क़ारिब और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में इलाका भर के मुमताज़ सियासी समाजी कारोबारी मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और राना शबीर के इनकी ख़ानदान को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर राना रहमत, राना ज़ुबैर और राना हमजा समेत दीगर मौज़ूज़ीन भी शरीक हुए और खुशी के इस मौके को खूब सराहा। बेहतरीन इंतज़ामात और पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था, जिसे शुरका ने खूब सराहा। तकरीब खुशगवार और पुरमसरत माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ मेहमानों ने दुल्हा दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और इनकी नेक ज़िंदगी के लिए दुआ की। सखर से हमारी नुमाइंदा समीना खान की खबर के मुताबिक सखर में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुफ्त पिंक स्कूटीज़ की तकसीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत खवातीन की तालीम और खुद मुख्तारी के मिशन पर अमली तौर पर काम कर रही है। ये इदारा आने वाली नस्लों की खवातीन को बाख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने शर्जील इनाम मेमन का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सिंध में मास ट्रांजिट निज़ाम की बेहतरी और जदीद ट्रांसपोर्ट मनसूबों के फ़रोग़ में इनकी क़यादत और काबिशें काबिल तहसीन है। ये विज़न दरअसल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इस रोशन सोच का तसलसल है, जिन्होंने खवातीन को माशरे का मजबूत सतून बनाने और इन्हें बाख्तियार बनाने के लिए तारीखी जदोजहद की। इस पर वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा समीना खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जो पीपल्स पार्टी वादा करती है वो पूरा करती है। आज उन्होंने साबित कर दिया। यहाँ सखर की तारीख में पहली मर्तबा इतना शानदार इवेंट होने जा रहा है। यहाँ पर खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पिंक स्कूटी की तकसीम की जा रही है और देखते हैं कि वो कौन खुशनसीब खवातीन लड़कियां हैं जो ये पिंक स्कूटी हासिल करेंगी। इस दौर में मैं भी शामिल हूँ। दुआ करेंगे ये पिंक स्कूटी मुझे भी मिल जाए। सखर में हर तरफ खुशियों, सखर में क्या पूरे सिंध में इस हर तरफ खुशियों का समा है। यहाँ पर जो पिंक स्कूटी तकसीम की गई है सिंध हुकूमत की तरफ से
जी नाज़रीन, ये वो खुश नसीब लड़की जिसको ये बाइक यहाँ पर पिंक स्कूटी यहाँ पर मिली है, हम इनसे पूछेंगे कि आपने क्या अप्लाई किया या आपको किस तरीके से मिली। हम प्रॉपर स्टनर मैंने अप्लाई किया था, ड्राइविंग लाइसेंस पहले लर्नर बनवाया, देन फिर परमानेंट बनवाया, फिर उसके बाद ये सारी ट्रेनिंग हुई, उसमें मैंने डेली गई थी मैं ट्रेनिंग प्रॉपर, उन्होंने बहुत मुझे अच्छा सिखाया उन्होंने, और फिर कल भी टेस्ट था वो भी देकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा नाम है और मुझे स्कूटी मिली है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। मेरा नाम मारिया मलिक है और मैं एसएमसी की मेंबर्स हूँ और आज सखर में, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पूरे सिंध में खुशी का माहौल है और सिर्फ गवर्नमेंट को खुशामदीद कहते हैं हम लोग। और जैसे कि औरत को बाख्तियार बनाने में बहुत अच्छा काम किया और जैसा कि बच्चियों को, स्टूडेंट को और वर्किंग वुमेन को परेशानी हो रही थी कहीं आने में, कहीं जाने में, तो उनके लिए सहूलत हो गई है। तो मैं समझती हूँ पूरे शहर में खुशियाँ हैं बहुत। और बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। मौजूद है हजरत जमाल साहिबा, हम उनसे पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर सकर की तारीख में पहली बार इतना शानदार प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी सिंध हुकूमत की, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और हमारी अदी फरियाल तारपुर साहिबा, बीबी आसफा, आसिफ जरदारी साहब और सीएम हमारे मुराद अली शाह साहब, हमारे सीनियर मिनिस्टर शर्जी नाम मेमन साहब, हमारी सारी क़यादत की कि जिन्होंने जो है यहाँ पर एक ख़वातीन को, मेरी बच्चियों को, मेरी बहनों को एम्पावर करने में हमारा साथ दिया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी बच्चियाँ जब यहाँ आई हैं और वो बाइक लेके जाएंगी और अब वो इतनी एम्पावर हो जाएंगी कि वो खुद कॉलेजेस भी जाएंगी और जो वर्किंग वुमेन है वो अपनी ड्यूटी पे भी खुद जाएंगी। राब्ता करें, आप थोड़ा वो भी हमें बताएं। मैं समझती हूँ इस टाइम अभी और भी बाइकें आनी है ना, बिल्कुल सेकंड फेज शुरू होगा और मेरा व्हाट्सएप, मेरा अपना, मेरी आईडी के ऊपर मेरा मैसेज, मेरी वीडियो भी चल रही है, उसमें मैंने सारा प्रोसीजर भी बताया हुआ है, मेरा नंबर भी फेसबुक पे है, तो आप उधर से काइंडली राब्ता करके और जो भी मेरे रिक्वायरमेंट भी मैंने बताई हुई है वो करके फिर आप साथ खास तौर पर ये सारा सिरा वजीर ट्रांसपोर्ट सजीलीना मेमन को जाता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद ये खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सकर में आज एक स्कूटी तकसीम की है और उनका कहना है कि ये सिलसिला आगे भी बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद बाईपास के करीब एक मुसाफिर बस में टायर फटने के बायस अचानक आग भड़क उठी, ताहम ड्राइवर की हाजिर दिमागी और मुसाफिरों की बरवक्त रद्द-ए-अमल के बायस तमाम अफराद महफूज रहे। जी बिल्कुल, इस अहम खबर से आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस जब वज़ीराबाद बाईपास के करीब पहुंची तो दौरान सफ़र अचानक इसका टायर ज़ोरदार धमाके से फट गया। टायर फटते ही बस में आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिसके बाद मुसाफिरों ने अपनी जान बचाने के लिए जल्दी में बस से छलांगे लगा दी। मुसाफिरों के बरवक्त इनकला के बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 122 और ईदी फाउंडेशन की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ साथ हिफाजती इक़दाम किए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे, जबकि आग लगने के इब्तदाई वजह खस्ता हाल टायर का फटना बताया जा रहा है। रेस्क्यू काम का कहना है कि आग के बायस बस मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई है और इसकी तमाम सीटें खासतर हो गई हैं। हुकाम ने ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की है कि वो गाड़ियों के बरवक्त फिटनेस चेकिंग यकीनी बनाएं, खसूसन तवील सफ़र से कबल टायरों की हालत का मुआयना करें ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाही कमेटी बराए तालीम तरबियत निज़ामाबाद इलाहाबाद के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 50 मुस्तहिक़ तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। तकरीब में सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद असलम भट्टा, खजानची हाजी सेठ मोहम्मद रफ़ी, हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल निज़ामाबाद समेत मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। दीगर नुमाया शुरा में सेठ एजाज रफ़ी, सर हाजी मोहम्मद आसम, इफ्तिखार अहमद बाजवा, प्रोफेसर नसर चुट्टा, मोहम्मद अनवार शाह बोदला, साहिबाल और चौधरी हिज़्ज़ुल्लाही शामिल थे। इस मौके पर मुकर्रिर ने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि मुस्तहिक़ तलबा की मदद दरअसल कौम के रोशन मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। उन्होंने इस्लाही कमेटी की काविशों को सराहा और इसे एक मिसाली कदम करार दिया। तकरीब के दौरान गवर्नमेंट हाई स्कूल निज़ामाबाद के कंप्यूटर लैब के लिए 50,000 रुपये, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निज़ामाबाद के प्रिंसिपल मैडम नाहिद अनवर को 20,000, जबकि ठठी अराइयाँ स्कूल के लिए 25,000 रुपये का अतिया भी दिया गया, जिसे शुरा ने बेहद सराहा।
आखिर में हाजी सेठ मोहम्मद रफ़ी की जानिब से प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चों में स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए गए, जिस पर तलबा और इनके वालिदैन ने खुशी और तशक्कुर का इज़हार किया। ये तकरीब न सिर्फ तालीमी शौर को उजागर करने का जरिया बनी, बल्कि माशरती फलाह बहबूद के जज्बे की एक खूबसूरत मिसाल भी पेश की। वज़ीराबाद से हमारे नुमाइंदे आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बाबाए सहाफ़त प्रेस क्लब का अहम इजलास ज़ेर सरपरस्ती हकीम रिफत नसीम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर सदर नैयर आलम, जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद अली समेत दीगर ओहदेदारान, सीनियर सहाफ़ियों और मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास के आगाज़ में तंजीमी कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया और गुज़िश्ता अरसे के दौरान सहाफ़ती सरगर्मियों, अवामी मसाइल की निशानदही और इदारा जाती राब्तों के हवाले से पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि सहाफ़त सिर्फ खबर रसानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये अवामी मसाइल को उजागर करने और इनके हल में मावन किरदार अदा करने का भी एक मौसर जरिया है। मुकर्रिन शकील अवान और सैयद शहबाज बुखारी ने अपने किताब में कहा है कि मुकामी सतह पर शहरियों को दरपेश मसाइल जैसे सफाई, सेहत, तालीम, ट्रैफिक और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को तरजीह बुनियादों पर उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रेस क्लब इस हवाले से अपना फाल किरदार मज़ीद मजबूत करेगा और किसी भी सूरत अवामी मसाइल के हल में गफलत या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि जल्द एक स्पेशल डेस्क कायम किया जाएगा जो शहरियों की शिकायत, मसाइल और तजावीज़ को मुनज़्ज़म तरीके से इकट्ठा करेगा। ये डेस्क न सिर्फ मसूल होने वाली इत्तलात को फौरी तौर पर मुतल्लिका सरकारी इदारों तक पहुँचाएगा। रिपोर्ट शहजाद मेमन। मोरू की रिहाशी किरण जरदारी ने गुज़िश्ता 3 बरस से दरबदरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अपने वीडियो बयान में कहा है कि इसके साबिक शोहर गौस बख्श जरदारी, शहबाज गिल जरदारी, रईस मोजन जरदारी, रईस जुल्फ़कार जरदारी और इनके साथी भाई इसके मौजूदा शोहर मुजाहिद जरदारी और इसके अहल खाना को मुसलसल हरासा कर रहे हैं। इससे इल्ज़ाम लगाया है कि बासर अफराद ज़बरदस्ती जगह करवा कर सख्त ज़मीन या नकद रकम का मुतालबा करते हुए ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। किरण जरदारी ने मज़ीद कहा है कि साबिक शोहर से तलाक के बाद इसने 3 साल कबल अदालत में मुजाहिद जरदारी से निकाह किया था। ताहम इसके बावजूद भी बासर अफराद इन्हें कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं। इसने बताया है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदराबाद हाई कोर्ट, IG सिंध, DIG सखर, SSP नौशहरो फ़िरोज़ और SHO मोरू को दरख्वास्तें दे चुकी हैं। इसने मुतालबा किया है कि इसे और इसके शोहर के अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर किसी भी जानी या माली नुकसान की जिम्मेदारी मरकूज़ अफराद पर आयद होगी। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में गर्मी का आगाज़ होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग 15 घंटों से तजावज़ कर गई। शहरी बिलबिला उठे, बिजली की बदतरीन बहरान ने सर उठा लिया। खानका डोगरा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से तजावज़ कर गया। शदीद गर्मी और हब्स से शहरी निठाल हो गए हैं। रात भर मच्छरों की यलगार ने नींद हराम कर दी। बच्चे, बूढ़े और मरीज सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ा दी है। तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद गर्मी का सामना है, जबकि रात के औकात में मच्छरों की बहुतायत से सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई है। बिजली की अदम दस्तयाबी से घरेलू और कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं। तलबा को इम्तिहानात की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतल्लिका काम से लोड शेडिंग के खात्मे और शेड्यूल जारी करने का मुतालबा किया है। सखर से हमारी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर के इलाका अलाहाबाद कॉलोनी के रिहायशियों का ज़री ज़मीन और प्रॉपर्टी पर मुबैना कब्जे के खिलाफ सखर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक सखर के रिहायशी मसमात मुख्तियार बेगम ने अपने बेटों, बेटी और बच्चों के हमरा अपने देवर और इनके बेटों के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि मेरे ससुर के गाँव मोहम्मद हयात जुनेजो में तकरीबन 100 एकड़ ज़री ज़मीन है और इसके अलावा कराची में फ्लैट, शिकारपुर में 2 दुकानें और घर में, मगर मेरे बच्चों को इनके मरहूम वालिद गुलाम मोहम्मद जुनेजो का हिस्सा नहीं दे रहे हैं और उल्टा मेरे बच्चों पर झूठे मुकदमात और मौतमान धमकियां दे रहे हैं। हमने बरादरी के बड़ों सरदारों के पास भी गए, मगर बातचीत करने के लिए भी नहीं आ रहे। मसमात मुख्तार बेगम ने मुबैना इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मेरा देवर मेरे शोहर को अपने साथ ले गया था। चंद घंटों बाद मेरे शोहर की नाश वापस घर आई। मेरे शोहर गुलाम मोहम्मद जुनेजो की मौत का मुआवजा भी मेरे देवर ले गए। यहाँ तक कि मेरा शोहर वैक्सीनेटर था। इसके रिटायरमेंट, इंश्योरेंस और दीगर मराहत और इसकी नौकरी भी अपने बेटे जुल्फ़कार को दिलवाई। मुझे धमकाने लगे तो मैंने गांव मोहम्मद हयात जुनेजो शिकारपुर से सखर मुंतकिल हो गई ताकि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे। मुतासिरीन SSP शिकारपुर, SSP सखर, DIG सखर समेत मुतल्लिका इदारों और हुकाम बाला से इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की सदा की है। इब्राहिम जुनेजो आहे, असांजी ज़मीन ॻोठ मोहम्मद हयात जुनेजो में आहे, 100 खां मथे ज़मीन आहे। तंहिंमें असां नंढड़ा हुआसीं त असांजो पीउ शहीद करायो, असांजो दीन मोहम्मद चाचो आहे, उन शहीद करायो। उहो वठी वियो, उनखे ज़मीन ते असांखे मोटीअ जी फ़ोन आई त असांजो तव्हांजो पीउ शहीद थी वियो आहे। हाणे उन खां पोइ असां हाणे वॾा थिया आहियूं, असां मिल्कियत संभाली आहे त कराची में फ्लैट बि आहिनि, ज़मीना बि आहिनि। न असांखे ज़मीननि मां का शइ हिसो मिलियो आहे, न असांखे दुकाननि मां हिसो मिलियो आहे।
नई असांजे पीउ जी जेकी रिटायरमेंट हुई उहा असांखे मिली आहे। हाणे जेके 7 फार्म असां कढायो आहे त असांजो पीउ जो उन में ज़िक्र ई न आहे। उन में असांजे ॾाॾे जे नाले में सिर्फ़ु 2 भाउर आहिनि, हिकु दीन मोहम्मद, हिकिड़ो शाह मोहम्मद। असांजे पीउ जो उन में नालो निशानी न ॼाणाए थो। नई असांजे का शइ ज़मीन जी 2-3 लख रुपया ॾिना चई जेके तव्हांजो हिसो आहे ऐं 2-3 स्टाम्प पाण करे छॾिया अथऊं। असांखे मिल्कियत जो कोई बि हिसो न ॾिनो अथऊं, न दुकाननि जो, न ज़मीननि जो, न कराची फ्लैट जो। असां हर कंहिं ॾे विया आहियूं, पंहिंजे सरदारनि ॾे विया आहियूं, वसवारनि ॾे विया आहियूं, अपील कयूं आहिनि, तॾहिं बि माना उहो ॻाल्हायो नथा ॾियनि, ॾाढे ज़रूरत ई नथा ॾियनि। असांजो त ॻाल्हायो ॾियनि, बीहे न बीहे, ॻाल्हायो त लहिणो न, ॻाल्हायो बि नथा ॾियनि। उल्टो असां ते केस था करनि, असांखे फासाइण ते कूड़ियूं FIR जूं धमकियूं, विढ़ण जूं धमकियूं, माना असांजो हक़ अदालत करनि नथा, न ॻाल्हायो त न असांजे पीउ जो माना कोई ज़िक्र असांजो 7 फार्म कयो, असांजी वारसी ख़तमु कराई अथऊं। असांजो मुतालबो इहो आहे, वसवारनि खे अपील आहे जी सिंध के CM सिंध के जेके बि वसवार आहिनि, असां अपील था कयूं त असांखे पंहिंजो हक़ पीउ जो ॾियाराए वञे। असांखे ज़मीन ऐं मिल्कियत जो जेको बि हक़ हिसाब आहे असांखे मिलियो वञे, असांजी इंसाफ़ कयो वञे। शामिल कहते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शिराज अली तन्नू की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद 4 साल कबल कत्ल होने वाले नौजवान की लाश ना मिल सकी। बेवा माँ और बच्चों का प्रेस कॉन्फ्रेंस। वारा के गांव रमज़ान बरोही के मकतूल नौजवान अली अहमद बरोही के वालदा नूर बीबी और भाई अबू बकर ने मासूम बच्चों के हमरा तालका प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दुहाई दी है कि बुरसान का कहना है कि कत्ल को 4 साल बीत गए हैं। सिंध हाई कोर्ट के वाज़िह अहकाम के बावजूद पुलिस मकतूल की लाश बरामद करने में नाकाम है। मकतूल की मां ने इल्ज़ाम लगाया है कि रमज़ान, खानू, अजीज़, अब्दुल रसूल और दीगर नामजद मुलजमान इन्हें जानी और माली नुकसान की धमकियां दे रहे हैं, जिससे इनका जीना मुहाल हो गया है। जदीद टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। बुरसान ने इंकशाफ किया कि मुलजमान मसनूई ज़हानत का सहारा लेकर हमारी झूठी वीडियोज़ और बयानात तैयार कर रहे हैं ताकि कत्ल केस को कमज़ोर किया जा सके और पुलिस पर दबाव डालकर उल्टा हम पर ही झूठे मुकदमा दर्ज कराए जाए। मुतासा ख़ानदान ने वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और IG सिंध से मुतालबा किया है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराते हुए लाश बरामद की जाए और बासर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ारत दिफा के चीफ कोऑर्डिनेटर कर्नल इरफान हसन ने फैसलाबाद एयरपोर्ट का दौरा किया। दौरा के दौरान चीफ कोऑर्डिनेटर को फ़्लाइट ऑपरेशंस और चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। उन्होंने ATC टावर और एयर साइड एरिया का मुआयना। दौरा के दौरान चीफ कोऑर्डिनेटर ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए इक़दाम को सराहा और एयरपोर्ट सफाई और सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुख्तलिफ इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन का जायज़ा भी लिया। उन्होंने जारी मनसूबों और मुस्तकिल की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। लाहौर रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब के इमिग्रेशन और हज के हुकाम लाहौर पहुंच गए। सऊदी अरब के वफ़द ने हज इंतजामात का जायज़ा लिया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक कराची इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर से भी हजाज की इमिग्रेशन हो सकेगी। हजाज कराम सऊदी अरब पहुंचने के बाद डायरेक्ट टर्मिनल से बाहर निकल जाएंगे। लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हजाज कराम के लिए अलग से हाल बना दिया गया है। इमिग्रेशन के बाद तमाम हजाज इस हाल में जाने के बाद सीधे जहाज़ पर सवार होंगे। दूसरी जानिब इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी सऊदी अरब की इमिग्रेशन टीमों ने काम शुरू कर दिया है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज़मीन हज की पहली परवाज़ कल सुबह 10:30 बजे जद्दा के लिए रवाना होगी। इकबाल टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्नैचिंग की वारदात में मुलव्वस आदि मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इकबाल टाउन डिवीज़न में स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्वस मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। CCTV फुटेज में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुलज़म को ट्रेस कर लिया। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के दौरान मुलज़म अली रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़मान के कब्ज़े से छीना गया पर्स, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलज़म जो है 15 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता आदि मुलज़म निकला। मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। SP कैंट इकबाल टाउन जो है सिद्रा खान की इकबाल टाउन पुलिस को जो है शाबाश दी। जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आइंदा माह बांग्लादेश में होने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच 8 से 12 मई तक ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि सलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दूसरे टेस्ट की मेजबानी करेगा जो 16 से 20 मई तक खेला जाएगा। शान मसूद टेस्ट टीम की क़यादत जारी रखेंगे, जबकि 4 इनके खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, अमाद भट्ट, अजान अवैस और मोहम्मद गाजी गोरी स्क्वाड का हिस्सा हैं। तमाम खिलाड़ी कराची में कैंप के लिए पीर 27 अप्रैल को इकट्ठे होंगे। कैंप 1 मई को इख्तिताम पजीर होगा। 2 मई को कौमी टीम बांग्लादेश रवाना हो जाए।
पीसीबी ने बांग्लादेश के दौरे के लिए रेड बॉल कोचेस की तकर्री की भी तस्दीक कर दी है। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद टीम के हेड कोच होंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक और उमर गुल इस दौरे में बरतरतीब बैटिंग और बॉलिंग कोच के तौर पर काम करेंगे, जबकि कौमी टीम के स्क्वाड में शान मसूद कप्तान, अब्दुल्ला फजल, माद भट्ट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान विकेट, मोहम्मद गाजी गोरी विकेट, नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाफरीदी शामिल होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।